हेलो फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड द मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, जहां पे हमने ये डिस्कस किया दैट वी विल बी ड्राइंग अ ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ वी विल ट्राई टू ascertain that what kind of a relation exists between x and y. It could be positive, it could be negative. If it is positive, it can be perfect positive, it can be imperfect or partial positive. If it is negative, it can be perfect negative, it can also be imperfect or partial negative. This we discussed in the last lecture of scatter diagram. Now friends, the next question that arises in front of us is that we know that if the relation is imperfect, then how much imperfect it is. I told you all that the basic objective of linear correlation is to ascertain the strength of correlation between x and y, and for that we use correlation coefficient which is nothing but स्मॉल r. ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस किया था. लेकिन फ्रेंड्स, स्कैटर डायग्राम की मेथड में हमें सिर्फ यही मालूम पड़ा कि परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. वी कुड नॉट ascertain द एग्जैक्ट वैल्यू, वी कुड नॉट ascertain द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कि दोनों के बीच में कितना रिलेशन है, वो हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए. इसीलिए स्कैटर डायग्राम की मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि वी कुड नॉट डिराइव द परफेक्ट और प्रॉपर वैल्यू ऑफ r. हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y बढ़ रहा है. We can just ascertain the direction or flow of x and y. We cannot ascertain the perfect or proper value of the correlation coefficient r. हाँ, वो मेथड जो थी उसके अपने फायदे. एक तो सिंपल थी, कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, एकदम जल्दी से जल्दी हम कर सकते थे, हमें डायरेक्शन का भी मालूम पड़ रहा था. लेकिन फ्रेंड्स, स्कैटर डायग्राम मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि वहां पर कोई मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज नहीं हो रही. वी आर जस्ट ड्राइंग द ग्राफ पेपर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट वी आर ट्राइंग टू ascertain द रिलेशन. तो वो उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ r नहीं मिल रही मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करके. तो अभी इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए आफ्टर द मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम वी हैव वन अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड व्हिच इज कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड. फ्रेंड्स, पहली कौन सी थी? मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम. उसमें लिमिटेशन क्या थी कि मैथमेटिकल फार्मूला यूज नहीं हो रहे थे, इसलिए r की परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही थी. तो उसे ओवरकम करने के लिए हम कौन सी मेथड लेकर आए? कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड. तो अभी फ्रेंड्स, उसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए ये आया है. तो इसमें क्या होगा? यस, हियर वी विल यूज मैथमेटिकल फार्मूलाज, प्रॉपर कैलकुलेशंस विल बी डन, and on the basis of all this we will ascertain the exact value of r, and on the basis of this value we will interpret how much is the correlation between x and y. यहाँ friends हमें perfect value मिलेगी. So this is Karl Pearson's product moment method. Now friends, listen to me very carefully. Scatter diagram, I told you earlier also that it is not much important from the examination perspective, but this method of Karl Pearson's product moment is the most important method, not only for this chapter but for the entire course of statistics. Friends, in this time's board paper, 3 questions were asked in the board examination. I suppose all the 3 questions were pertaining to 5 marks 3 questions. All of them were pertaining to Karl Pearson's product moment method. One from chapter 2, one from chapter 3, one from chapter 4. Karl Pearson's method will also continue in chapter 3 and chapter 4. So this method is very important for you all, and you cannot just leave any loophole in this method. You have to be perfect and precise when doing this method. Friends, इस मेथड में हम एकदम आराम से पढ़ेंगे so that you can revise and understand all the things properly at your home. अभी यहाँ क्या आएगा फ्रेंड्स? करेक्ट वैल्यू ऑफ r. ठीक, अभी r जो है ना फ्रेंड्स, वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अगर तुम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में 11th में ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो किसी भी चीज का कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट वो हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है. मतलब वो एब्सोल्यूट मेजर नहीं होता है, रिलेटिव मेजर होता है. मतलब इसके पीछे कभी यूनिट नहीं लगता कि 1 kg 0.5 लीटर, ऐसा कभी होता नहीं है. कोएफिशिएंट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो फ्रेंड्स, यहां पर r भी जो है अपना, वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अभी ये जो अपना r है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. क्या प्रॉपर्टीज है?
हम जो फॉर्मूलाज कार्ल पियर्सन की बनाएंगे ना, उसमें हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे कि द वैल्यू ऑफ आर, जो आर हमारा आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, बिटवीन -1 एंड +1। आर यहां लेस देन और इक्वल टू और यहां भी लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू -1 से कम नहीं होगी और +1 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब इट विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, इसके बीच में कुछ आंसर आएगा, मतलब इट कैन बी -1, इट कैन बी -0.98, इट कैन बी +1, इट कैन बी +0.95, इट कैन बी 0 एज वेल। बट अगर तुम्हें कोई बोले कि r की वैल्यू -1.1 हो सकती है, देन यू शुड से इट कैन नॉट बी डन, बराबर, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। इन द सेम वे अगर तुम्हारा r का आंसर +2 आ रहा है, again not possible. The fundamental rule is the value will lie between -1 and +1. This is because we have devised the formulas in such a manner that the value will lie in between these two, because it is just a coefficient and coefficient is always a relative measure. जैसे हमने क्या किया था, इंडेक्स नंबर बेसियर का 100 लिया था, इसमें हमने इसमें ऐसे फॉर्मूला डिजाइन की है कि -1 और +1 के बीच में आंसर हमेशा आएगा। ठीक, अभी फ्रेंड्स हमने दूसरी चीज पढ़ी थी कि रिलेशन होगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अभी मैं एक नंबर लाइन बताता हूं। ठीक, अभी फ्रेंड्स यहां पर हमने क्या देख लिया कि वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगी, r की वैल्यू उसके सिवाय तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूं -1, राइट हैंड साइड पे लिख देता हूं +1 और यहां बीच में मैं लिख देता हूं 0। तो फ्रेंड्स r की वैल्यू जो है वो इसी के बीच में आने वाली है, -1 से लेकर +1 के बीच में। अभी फ्रेंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव तो तुम लोग समझते हो कि अगर कोई भी चीज का आंसर प्लस में है देन इट इज पॉजिटिव, माइनस में है देन इट इज नेगेटिव। तो फ्रेंड्स यहां पर ये पूरा क्या हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, -0.0001 से लेके -1 तक सब कुछ क्या हो गया, नेगेटिव। और उसी तरह से +0.00001 से लेके 1 तक सब कुछ क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब अगर तुम्हें कोई बोले +0.55 तो कौन सा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव। कोई बोले -0.42 तो कौन सा रिलेशन हो गया, नेगेटिव। आर यू क्लियर विद दिस? जीरो डिनोट्स लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, कि कोई कोरिलेशन है ही नहीं दोनों वेरिएबल्स में। ठीक है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। अभी दूसरी चीज हमने पढ़ी थी परफेक्ट और इम्परफेक्ट। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, परफेक्ट वैल्यू का मतलब 100% एक्यूरेसी। परफेक्ट वैल्यू का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, 100% एक्यूरेसी। और 100% एक्यूरेसी हमने देखा कि पॉजिटिव में भी परफेक्ट हो सकता है और नेगेटिव में भी परफेक्ट हो सकता है। नाउ दिस 100% वुड मीन कि +1 या तो -1। मतलब फ्रेंड्स +1 का मतलब क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव, और -1 का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, +1 -1 100% एक्यूरेसी, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट। प्लस है तो पॉजिटिव, माइनस है तो नेगेटिव, परफेक्ट। परफेक्ट डिनोट्स द साइन ऑफ 1 व्हिच मींस 100% एक्यूरेसी। अभी क्या बचा, 0 लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, +1 परफेक्ट पॉजिटिव, -1 परफेक्ट नेगेटिव। अभी क्या बचा, 0.01 से लेके 0.99 या तो फिर -0.01 से लेके -0.99। ठीक है, अभी अपने को ये पता है फ्रेंड्स कि ये होगा पॉजिटिव और ये भी पता है कि ये होगा नेगेटिव। अभी सोचना क्या है कि परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। फ्रेंड्स अभी देखो, +0.01 से 0.99 में 100% एक्यूरेसी लैकिंग है, एंड इफ 100% एक्यूरेसी इज लैकिंग देन वी विल डिनोट इट टू बी इम्परफेक्ट पॉजिटिव। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स इसको, इम्परफेक्ट पॉजिटिव। और -0.01 से लेके -0.99 में भी 100% एक्यूरेसी लैकिंग है, तो उसको भी क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, अगेन इम्परफेक्ट नेगेटिव। इम्परफेक्ट को पार्शियल भी कह सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम राइटिंग इम्परफेक्ट। So this is the interpretation of the number line depicting the value of correlation coefficient R. फिर से फ्रेंड्स, वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो सकती है, -1 से लेकर +1 के बीच में। माइनस की सारी वैल्यूज का मतलब नेगेटिव, प्लस की सारी वैल्यूज का मतलब पॉजिटिव। -1 मतलब 100% एक्यूरेसी, नेगेटिव तो है, और 100% एक्यूरेसी मतलब परफेक्ट नेगेटिव। +1 का मतलब 100% एक्यूरेसी, प्लस मींस पॉजिटिव, 1 मींस 100% एक्यूरेसी, तो वो क्या हो गया फ्रेंड्स, परफेक्ट पॉजिटिव।
-0.01 टू -0.99 क्या हो गया? 100% एक्यूरेसी नहीं है, वैल्यू नेगेटिव है, तो वो क्या हो गया? इम्परफेक्ट नेगेटिव। और +0.01 से लेके +0.99 मतलब प्लस यानी पॉजिटिव, और 100% एक्यूरेसी इज लैकिंग, तो क्या हो गया? इम्परफेक्ट। सो इट वुड बी इम्परफेक्ट पॉजिटिव। आई होप यू आर क्लियर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। अभी फ्रेंड्स देखो, किसी बंदे को एग्जाम में 100 में से 100% आए तो वो भगवान है, ठीक। लेकिन कोई बंदा है बेचारे के 99% आए तो वो क्या इम्परफेक्ट हो गया? ऐसा बोलोगे तुम लोग? अभी तुम्हारा गुजरात बोर्ड की 12th की एग्जाम होगी, फर्स्ट रैंकर को भी 95% मार्क्स आएंगे, तो ये क्या 99 वाला बकवास हो गया? नहीं, इम्परफेक्ट है, दिस इज द रूल। बट व्हाट डज दिस इंडिकेट कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच में 99% रिलेशन है या 95% रिलेशन है या इवन मोर देन 90% रिलेशन है, देन वी कैन से दैट दो इम्परफेक्ट पॉजिटिव। मैं अपने रूल से डेविएट नहीं कर रहा, इम्परफेक्ट पॉजिटिव तो है ही, बट व्हाट डज दिस इंडिकेट? इट इंडिकेट्स अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या दिखाता है फ्रेंड्स? वो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अगर 0.90 के ऊपर आंसर आए, 0.88, 0.90 ऐसा कुछ भी आंसर आए, देन इट इंडिकेट्स अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और अगर फ्रेंड्स तुम्हारा आंसर आए समझ लो 0.02 मतलब 2% एक्यूरेसी, 2% रिलेशन, तो ये क्या हो गया? इम्परफेक्ट पॉजिटिव तो है ही, बट दिस इंडिकेट्स अ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर बड़ी वैल्यू आई, 1 आई तो परफेक्ट पॉजिटिव, और 1 से छोटी लेकिन फिर भी बड़ी वैल्यू आई, देन हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और बहुत छोटी वैल्यू आई, देन इट इंडिकेट्स लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। दिस वाज द फंडामेंटल ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हिच इज आर। थियरी पोर्शन और कई प्रैक्टिकल सम्स में लिखने के लिए काम आएगा, एक बार ये देख लो आराम से। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फॉर्मूलास पार्ट, ठीक। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन टू फाइंड आउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, ठीक है। सबसे पहली फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू, हमें फ्रेंड्स यहां पे r में फाइंड क्या करना है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। क्या करना है? दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, तो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशन है उसको हम कहते हैं कोवेरियंस। क्या कहते हैं? कोवेरियंस। किन दो वेरिएबल्स के बीच में? x और y के बीच में। इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? कोवेरियंस। को मींस म्यूचुअल एंड वेरियंस मींस द रिलेशनशिप बिटवीन दीस टू वेरिएबल्स व्हिच आर नथिंग बट x एंड y, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स कई बार क्या होता है पता है? समझ लो मैं एक डेटा ये लेता हूं 1 2 3 4 5 for x and for y 10 20 30 40 and 50, ठीक है। दूसरा डेटा मैं लेता हूं x y 1 2 3 4 5 and for y 2 4 6 8 and 10। अभी फ्रेंड्स करना क्या है पता है तुम लोगों को? सिर्फ एक रफ बुक में ग्राफ पेपर पे ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करो, सारे दोनों ही डेटा के पॉइंट्स प्लॉट करो, डेटा 1 डेटा 2। व्हाट द फिगर यू विल गेट इज, दोनों ही कर्व्स इस तरह से बनेंगे एंड ऑल द पॉइंट्स विल लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, दोनों ही डेटा में 110%। अभी फ्रेंड्स हमने स्कैटर डायग्राम की मेथड में ये पढ़ा था, हमने स्कैटर डायग्राम की मेथड में ये पढ़ा था, इफ ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन वन लाइन moving in upward direction from left to right, then it is denoted by perfect positive relation। तो इन दोनों डेटा में, इसमें भी और इसमें भी, एक बार देख के करके देख लेना, you will understand the thing very clearly, क्योंकि फॉर्मूला तभी समझ में आएगी जब तकलीफ समझ में आएगी, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन इन दोनों के बीच में हो गया, और अभी हमने आगे डिस्कस किया कि पॉजिटिव मतलब आंसर प्लस में आना चाहिए, परफेक्ट मतलब 100% एक्यूरेसी, तो आंसर फ्रेंड्स क्या आएगा? +1 फॉर बोथ दीस डेटा। और फ्रेंड्स अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस जब फाइंड करूंगा कोवेरियंस से, तो इसका कोवेरियंस बड़ा आएगा, क्यों? क्योंकि वैल्यूज बड़ी है, और इसका कोवेरियंस छोटा आएगा, क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि वैल्यूज छोटी है। लेकिन अल्टीमेटली तो दोनों का आंसर क्या आएगा? +1। सो टू डू अवे विथ द म्यूचुअल डिफरेंसेस इन x and y, to do away with the mutual differences in x, or I would say the internal differences in x and the internal differences in y, मतलब x में अंदर अंदर जो वैल्यू में डिफरेंसेस है वो, और y में अंदर अंदर जो वैल्यूज में डिफरेंस है उसको हमें क्या करना है? एलिमिनेट। और फ्रेंड्स x अपनी वैल्यूज से कितना दूर है will be denoted by x minus x बार, कि x की हर वैल्यू अपने मीन से कितनी दूर है, और y अपनी वैल्यूज से कितना दूर है will be denoted by y minus y बार।
आर यू क्लियर विथ माय पॉइंट? मतलब समझ लो कि इस डेटा में सिग्मा x होगा 15, डिवाइड इट बाय 5, यू विल गेट द मीन 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 minus 3 would be -2, -1, 0, 1 and 2. So these are nothing but x minus x bar. और फ्रेंड्स 11th में तुमने पढ़ा था कि जब डेटा में इंटरनल डिफरेंसेस हमें फाइंड करने हो, then we will use a thing which is termed as standard deviation. इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड डेविएशन. इसके साथ तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला भी दिखाई गई होगी. वो क्या थी? रूट ऑफ सिग्मा x minus x bar the whole square divided by n. सर ये x minus x bar चाहिए, तो ये x minus x bar का होल स्क्वायर क्यों करवा रहे हो? वो भी समझाता हूं. देखो अभी बाजू में मैं फाइंड करता हूं x minus x bar यहां पे, ठीक है. हियर x bar will be, देखो यहां पे सिग्मा x कितना है 15, divide it by n which is 5, so you will get x bar is equal to 3. ये मेरा आया x bar. अभी x minus x bar मतलब 1 minus 3, so it is -2, 2 minus 3 it is -1, 3 minus 3 is 0, 4 minus 3 is +1, 5 minus 3 is +2. अब फ्रेंड्स इन सबका टोटल करो, -2 minus 1 -3, -3 plus 1 -2, -2 plus 2 would be 0. सर ये 0 इस क्वेश्चन में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन दुनिया में उठा लो, pick up any question from the damn or dump of questions you have, you will always get the answer of sigma x minus x bar 0. There is no logic in there is no magic in this getting 0. It is always going to happen, क्योंकि अगर x में से x bar को माइनस करोगे then ultimately you are going to get the answer 0. तो अगर ये 0 आएगा तो हर बार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का आंसर फ्रेंड्स क्या आएगा? 0. सो टू एलिमिनेट दिस 0 कैलकुलेशन व्हाट वी डू इज हम इसका स्क्वायर कर देते हैं. क्या कर देते हैं फ्रेंड्स? इसका स्क्वायर कर देते हैं. देखते हैं स्क्वायर करके आंसर 0 आता है कि नहीं आता है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग द स्क्वायर ऑफ x minus x bar द होल स्क्वायर. ठीक है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1, देन 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 4 plus 1 5, 5 plus 0 5, 5 plus 1 6 and 6 plus 4 10. Are you getting my point? मतलब जो x minus x bar 0 आ रहा था उसकी जगह हमने x minus x bar का होल स्क्वायर ले लिया, तो आंसर क्या आ गया? 10. 10 आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. The answer is available to us. ये 0 तो कुछ काम का नहीं है. लेकिन फ्रेंड्स हम ऐसे ही मजा आए तो किसी चीज का स्क्वायर नहीं कर सकते. सो टू एलिमिनेट दैट स्क्वायर हम क्या कर दे रहे उसे रूट में. समझ लो मेरे को 5 लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसका स्क्वायर करना है, देन आई कैन राइट इट दिस वे, 5 स्क्वायर रूट. तो इसका भी आंसर 5 आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने क्या किया, x minus x bar 0 आएगा तो उसका क्या कर दिया? स्क्वायर. और स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर दिया? रूट. और डिवाइड इट बाय n, क्योंकि जितना डेटा बड़ा होगा उतनी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो डिवाइड इट बाय n. सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. इन द सेम वे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा फ्रेंड्स? x की जगह y लिख लो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी कोवेरियंस ऑफ xy क्या दिखाएगा? दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशन. और इंटरनल डिफरेंस को कौन एलिमिनेट करेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फॉर x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फॉर y. तो इसे डिवाइड किससे कर देने का? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. आर यू क्लियर विद दिस? तो फार्मूला क्या हुई फ्रेंड्स? कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx इनटू sy. कोवेरियंस, mutual difference sx, internal difference of x, sy, internal difference of y. Are you clear with this? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अभी sx और sy की फॉर्मूला तुम लोग को पता है और मैंने वो भी समझा दी कि किस तरह से आ रही है. If you are not clear with what you did in 11, so I again explained it to you. अभी ये कोवेरियंस तुमने नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि कोवेरियंस चीज क्या है. ठीक है, समझ लो ये डेटा है मेरा x and y, 1 2 3 4 and 5, and my y is 10 20 30 40 and 50. ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करने का? x का सम कर देने का. ठीक है, सिग्मा x is equal to 15 और यहां पर सिग्मा y आएगा 150. ठीक है, हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया कि हमें x minus x bar और y minus y bar चाहिए, फिर हम उसका स्क्वायर भी करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले x bar फाइंड करते हैं. इट वुड बी सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, सो 15 by 5 would make it to be 3. ठीक है, फिर y bar की बात करते हैं. इट वुड बी सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, सो 150 डिवाइडेड बाय 5 would make it 30. ठीक, अभी सबसे पहले क्या करेंगे? x में से x बार को माइनस करके डेविएशन फाइंड करेंगे. क्यों? स्टैंडर्ड डेविएशन में चाहिए.
y में से y बार को माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। सो द फर्स्ट टेबल वुड बी x minus x bar. x bar क्या है फ्रेंड्स? 3. 1 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2. टोटल कितना है? आंख बंद करके हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है? अभी उसी तरह से y का करना है, y minus y. 10 minus 30, y बार कितना है फ्रेंड्स? 30. 10 minus 30 minus 20, 20 minus 30 minus 10, 30 minus 30 0, 40 minus 30 10, and 50 minus 30 would be 20. Again the answer is 0. Are you getting my point? तो ये x minus x bar और y minus y bar अपने लिए काम के नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये और ये तो समझ में आया। अब ये कोवेरिएंस चीज क्या है? कोवेरिएंस क्या है पता है फ्रेंड्स? कि ये और ये दोनों डिफरेंसेस है, दोनों का हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज वी आर सपोज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट ऑफ दीस टू। मतलब सर x minus x bar into y minus y bar, हम दोनों को साइमल्टेनियसली कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। लेट्स डू इट। -2 into -20 plus 40, -1 into -10 plus 10, 0 into 0 0, 1 into 10 10, 2 into 20 would be 40. So the total is 100. सर यहां पर स्क्वायर क्यों नहीं किया? स्क्वायर करने के बावजूद भी आंसर तो आ ही गया ना। देन व्हाई आर वी सपोज्ड टू डू स्क्वायर? x minus x bar का स्क्वायर यहां क्यों करते हैं? क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। y minus y bar का स्क्वायर क्यों करते हैं? क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। तो यहां अगर x minus x bar into y minus y bar का आंसर आ ही जा रहा है, देन व्हाई आर वी सपोज्ड टू डू द स्क्वायर? तो दोनों की म्यूचुअल कंपैरिजन क्या होगी? दोनों के डेविएशन का प्रोडक्ट, व्हिच इज नथिंग बट द कोवेरिएंस ऑफ xy. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तीनों फार्मूला में लिखता हूं, ठीक है? The first formula of this chapter is covariance of xy upon sx into s. ठीक? अभी covariance क्या है? Covariance of xy is equal to sigma x minus x bar into y minus y. इसका डेविएशन into इसका डेविएशन divided by n, क्योंकि n तो हर जगह डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना डेटा बड़ा होगा उतना n बड़ा होगा। Are you clear with this? दूसरा आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. उसका फार्मूला क्या होगा? सिग्मा x minus x bar. इसका आंसर आएगा 0, तो क्या कर देने का? स्क्वायर, और स्क्वायर किया तो क्या कर देने का? रूट डिवाइड बाय n. sy वो क्या होगा? सिग्मा y minus y bar. इसका आंसर क्या आएगा? 0. 0 को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर, और स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए रूट डिवाइड बाय n. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिवाइड इट बाय n. आर यू क्लियर विद दिस? अभी ये जो तीनों चीजें हैं इसको मैं फार्मूला में लिख रहा हूं। r is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar divided by n. ये क्या हुआ फ्रेंड्स? कोवेरिएंस ऑफ xy. अभी क्या करना है? डिवाइडेड बाय sx, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या है? सिग्मा x minus x bar the whole square divided by n into स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, वो क्या है? सिग्मा y minus y bar the whole square divided by n. समझ में आया? तो ये है हमारी दूसरी फार्मूला। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ एक चीज कॉमन है, यहाँ देखो डिवाइडेड बाय n है, और यहाँ क्या है? डिवाइडेड बाय रूट n और डिवाइडेड बाय रूट n. अभी ध्यान से सुनना, रूट n into रूट n would be n. समझ रहे हो? ये रूट n और उसको इंटू करो रूट n, देखो रूट 2 into रूट 2 क्या होगा? 2, ठीक है? तो यहाँ भी रूट n है, यहाँ भी रूट n है, और ऊपर क्या है? n. सो रूट n into रूट n will be cancelled by n. ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो क्या चीज है? दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्चुअल पोर्शन। फॉर्मूला बुक में दी है, रट्टा भी मार सकते हो इफ यू सो विश टू, बट आई फील दैट इट इज माय ड्यूटी टू डिलीवर द कांसेप्ट्स टू यू। रीजन व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द एंटायर प्रोसेस कि ये किस तरह से फॉर्मूलाज आ रहे हैं, ठीक है? अभी ये हुआ, अभी बचा क्या? सिग्मा x minus x bar into y minus y bar. ये क्या है? ऊपर का कोवेरिएंस का आंसर। n लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं लिखूं, क्यों? क्योंकि n कट हो गए सारे, ठीक है? अभी नीचे क्या बचा? रूट ऑफ सिग्मा x minus x bar the whole square, ठीक है? ये n कैंसिल हो गया, और इधर क्या बचा? रूट ऑफ सिग्मा y minus y bar the whole square. This is the first and the most important formula of Karl Pearson's product moment method from which a 5 mark question can be expected. ये देख लो पूरी प्रोसेस, एक बार दिमाग में सेट करने की कोशिश करो, ठीक है? Now this was the conceptual backdrop कि किस तरह से समझना है, but in the end I will also give you कि किस तरह से याद रखना है. So you need not to worry, डर मत जाना कि ये कैसे याद रहेगा. Don't worry, that I will take care of. But this was the conceptual background of this chapter. अभी हमने ये एक फॉर्मूला की,
और ये दूसरी फॉर्मूला की। अब फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 5 चालू करने से पहले तुम लोग को ये फॉर्मूला तो भी याद नहीं होगी, तो मैं तुम्हें ये समझाता हूं कि क्वेश्चन में जो फर्स्ट फॉर्मूला थी ना फ्रेंड्स, कोवेरिएंस ऑफ xy by sx into sy, इट विल बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस। बाकी जो लास्ट में हमने फॉर्मूला की ना वही 5 मार्क में पूछी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। याद ना हो ना तो भी आंसर आ जाएगा, डोंट वरी, मेरे पे ट्रस्ट रखो। I know that there would be many students who would be finding difficulty in understanding the process of formula, but then it is my duty, क्योंकि कुछ बच्चों को ये समझने में मजा आता है, so I have explained it to you. Now my duty is towards those students who feel कि ये formula का पूरा process समझ में नहीं आया, सर करना क्या है? So now it's for you. First of all, a hypothetical example 1 2 3 4 5, and for y I will take 10 20 30 40 and 50. सबसे पहले क्या करने का, x की सारी वैल्यूज है, y की सारी वैल्यूज है, ये डेटा तुम्हें दिया ही होगा और हर क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर देने का, इन दोनों का टोटल कर देने का। जितनी कॉलम बनाओ सबका टोटल तो करना ही है। सबसे पहले ये दो कॉलम है, टोटल कर दो 3 6 10 and 15। दिस इज समेशन ऑफ x सिग्मा x, ठीक है। 10 30 60 100 150, सिग्मा y विल बी 150। अभी सिग्मा x के ऊपर से सबसे पहले फ्रेंड्स क्या निकालने का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय n कितना है, 1 2 3 4 5, तो मेरा x बार फ्रेंड्स क्या है 3, ठीक है। फिर क्या करने का, y बार फाइंड करने का, सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, 150 डिवाइडेड बाय 5, सो इट वुड बी 30। ये पूरा 4th 5th स्टैंडर्ड में हम ये करते थे भाई, करवा रहा हूं कि ये सब का टोटल करके मीन फाइंड कर दो, ठीक है। अभी हम जाते हैं 11th स्टैंडर्ड में, तुमने जो पढ़ा है। सबसे पहले क्या करने का, x में से उसकी क्या माइनस करने की, डेविएशंस। देखो अभी क्या है तुम्हारे पास, एक x है एक x बार है, तो करने का क्या फ्रेंड्स, x माइनस x बार, ठीक है। x कितना है यहाँ पे 1 और x बार कितना है 3, सो 1 माइनस 3 वुड बी 2, समझ रहे हो। फिर दूसरा 2 minus 3, 2 minus 3 would be, so sorry, here minus 2 and here 2 minus 3 would be minus 1, 1 minus 3 would be minus 2। अभी तीसरा क्या है, 3 minus 3, 3 minus 3 would be 0, ठीक है। फिर 4 minus 3 it would be 1, and then finally 5 minus 3 it would be 2, ठीक है। अभी क्या करने का, सबका टोटल करना ही है। So you have to make a total of this. Sir, answer 0 ही आएगा, आंसर 0 आना चाहिए। This proves if the answer here is 0, then it proves कि तुमने यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं की है। So it is quite essential that you find the answer of this as well. -2 -3 plus 2 -2 and plus 2 would be 0। ये हुआ। जैसा x का किया, एक बाई x है दूसरा बाई y है, तो उसके साथ भी वैसे ही करने का। तो दूसरी प्रोसेस क्या है, y minus y, ठीक है। 10 minus 30, so it would be minus 20, then 20 minus 30, so it would be minus 10, then 30 minus 30 would be 0, 40 minus 30 would be 10, and then 50 minus 30 would be 20, ठीक है। अब इसका टोटल कर दो, minus 20 minus 30 minus 30 minus 20 plus 20 would be again 0। मतलब अब तक कुछ नहीं किया है, ये 4th स्टैंडर्ड का किया, तो 11th स्टैंडर्ड का किया, ठीक है। अभी हम आएंगे 12th स्टैंडर्ड पे, ठीक है। अभी फ्रेंड्स क्या करना है, और ये जो मैंने किया ना 1 minus 3 10 minus 30, ये करना नहीं है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू। आगे के क्वेश्चंस में वी विल नॉट डू दिस। अभी फ्रेंड्स सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए दोनों वेरिएबल में, और दोनों वेरिएबल में रिलेशन किससे मिलेगा, इन दोनों के डेविएशन से, और इन दोनों का डेविएशन करके आंसर अगर 0 ना है तो अपने को स्क्वायर करना नहीं है। सो व्हाट वी डू इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज, इन दोनों का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। x minus x bar into y minus y bar, ये दो जो दिख रहे हैं इनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। -2 into -20 would be +40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे करोगे तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। -1 into -10 would be +10, 0 into 0 would be 0, 1 into 10 10, and 2 into 20 would be 40, इसका कर दो प्लस, so it is 100। ये क्या हुआ 100, सिग्मा ऑफ x minus x bar into y minus y bar। ये किसके लिए काम आएगा, कोवेरिएंस के लिए, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशन है उसके लिए। अभी ये हुआ म्यूचुअल रिलेशन। अभी इंटरनल डिफरेंस के लिए कौन आएगा फ्रेंड्स, x minus x bar the whole square। क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x would be based on x minus x bar, ये चलेगा,
पर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आंसर 0 है। तो टू एलिमिनेट दिस 0 हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो नाउ वी विल डू स्क्वायर ऑफ दिस x minus x bar the whole square, ठीक है। -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर वुड बी 4। इसका आंसर वुड बी 10। समझ गए? x का हुआ। y में भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, इंटरनल डिफरेंस। y minus y bar अगेन टोटल इज 0, तो 0 नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो नाउ y minus y bar the whole square, ये क्या होगा, -20 स्क्वायर 400, -10 का स्क्वायर क्या होगा 100। फ्रेंड्स किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए तो स्क्वायर का आंसर प्लस में आ रहा है, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400। सो माय टोटल इज 1000। समझ में आ रहा है? क्या करना है, सबसे पहले x का टोटल सिग्मा x डिवाइडेड बाय n करके x बार, y का टोटल सिग्मा y डिवाइडेड बाय n करके y बार। स्टेप नंबर 1 x माइनस x बार, स्टेप नंबर 2 y माइनस y बार, और उन दोनों का तीसरे स्टेप में क्या कर देने का, प्रोडक्ट। उसका आंसर 0 नहीं आएगा तो चल जाएगा। दिस इज फॉर कोवेरिएंस। अभी ये 0 है तो नहीं चलेगा तो इसका क्या कर देने का, स्क्वायर। ये 0 है तो नहीं चलेगा तो इसका क्या कर देने का, स्क्वायर। डन विद ऑल दिस। तो अभी r की फार्मूला सर क्या है बताओ, r इज इक्वल टू 1 बाय √2 इनटू √3। ये क्या है सर? तो इतनी बड़ी फार्मूला आपने क्यों लिखी, समझाता हूं क्या किया। देखो ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, यहां पर से हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन। अभी क्या करना है समझना, ध्यान से, एकदम आराम से याद ही रह जाएगी फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। x माइनस x बार किसी काम का है सर, हो भी सकता है, आंसर 0 है बेटा, तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। y माइनस y बार किसी काम का है, हो भी सकता है, लेकिन आंसर 0 है अगेन बेटा, सो नो यूज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार, आंख बंद करके लिख दो, इज इक्वल टू, और सभी में सिग्मा लिखना, ठीक, सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार, ठीक है, ये लिखा। फिर ये हुआ अपना स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने क्या लिखा, x माइनस x बार द होल स्क्वायर, ये लिख दो रूट में, रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार द होल स्क्वायर। तीसरा ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, y माइनस y बार द होल स्क्वायर, 3 की जगह लिख दो वो, दिस इज योर फॉर्मूला है। कुछ फ्रेंड्स ये नहीं लिखना है, ये नहीं लेना है, 1 2 3 फॉर्मूला इज 1 बाय √2 इनटू √3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो इसका रूट कर दिया। आर यू क्लियर विद दिस? यार इस तरह से भी रख सकते हो, और 3-4 क्वेश्चन इस तरह से करोगे तो ये तुम्हें याद ही रह जाएगी ऑटोमेटिकली। इट इज नॉट दिस डिफिकल्ट। हां याद है देन इट इज वेल एंड गुड, ना रहे इस तरह से करो, 3 से 4 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करोगे, आई एम श्योर कि फॉर्मूला खुद ब खुद याद रह जाएगी। फॉर्मूला रटने की या 5-5 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल बी इन योर माइंड, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन से काम करना है। अभी करते हैं। सबसे पहले क्या है, सिग्मा ऑफ x बार x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार, क्या आंसर आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस x बार द होल स्क्वायर का आंसर क्या है फ्रेंड्स 10 बट इन रूट, ठीक है। और सिग्मा y माइनस y बार द होल स्क्वायर का आंसर क्या है 1000 बट इन रूट, ठीक है। सो इट इज 100 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 1000 करोगे तो फ्रेंड्स आंसर आएगा 10000 इन रूट, और 10000 का रूट करोगे कैलकुलेटर में तो आंसर आएगा 100 बाय 100, सो योर आंसर वुड बी +1। एंड फ्रेंड्स प्लस डिनोट्स पॉजिटिव एंड 1 डिनोट्स 100% एक्यूरेसी, तो फ्रेंड्स ये आंसर क्या आया, परफेक्ट पॉजिटिव। और इसको अगर तुम स्कैटर डायग्राम पे ड्रॉ करोगे तो एक ऐसी ही तुम्हारी परफेक्ट लाइन बनेगी कि ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन विल लाई ऑन व्हिच ऑन दिस सेम लाइन। आर यू क्लियर विद दिस टॉपिक? क्या करना है, क्लियर विद द प्रोसेस। एक इलस्ट्रेशन आप करेंगे, इलस्ट्रेशन 5, एंड देन वी विल एंड द डिस्कशन, ठीक है। So now friends, the first illustration on the basis of application of the formula that we learned just now. X and Y are given to us. I am reading illustration number 5 for you, which is given on page number 70. The following information is collected by taking a sample of 7 candidates. मतलब total 7 candidates हैं, having nearly same intellectual ability, मतलब दिमाग सबका same है. To know the effect of last day preparation on for competitive exam of general knowledge on the result of examination. मतलब लास्ट डे में तुम लास्ट 3 दिन का डेटा है कि आखिरी 3 दिनों में किसी बच्चे ने कितनी पढ़ाई की, और दूसरा है कि उसको मार्क्स कितना है। नाउ रीडिंग आवर्स विल अफेक्ट योर मार्क्स, मतलब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा
दर्शाएंगे। दिस इज x एंड दिस इज y, ये हमें दिया हुआ है। नाउ वी नीड टू डू द रिमेनिंग प्रोसेस टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रीडिंग आवर्स ऑफ द लास्ट 3 डेज, मतलब आखिरी 3 दिनों में इतनी पढ़ाई की, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द डेटा एंड इंटरप्रेट इट। ठीक है, अभी क्या करना है ध्यान से सुनो, ये दोनों चीजें हमें दी है। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, रूल नंबर 1, कोई भी कॉलम एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए, हमें सबका टोटल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द टोटल ऑफ x। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये पूरी प्रोसेस दिमाग में बिठा लो, फिर उसी तरह से काम करना है। ठीक है, द टोटल इज 231, सिग्मा x इज इक्वल टू 231। अभी सिग्मा x आया तो उसके सबसे पहले क्या कर देने का, फोर्थ स्टैंडर्ड मीन, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा x कितना आया, 231, डिवाइडेड बाय n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन में भी दिया है, देयर आर 7 कैंडिडेट्स, सो 231 डिवाइडेड बाय 7 इज 33। तो यहां x बार कितना आया फ्रेंड्स, 33। अभी ये प्रोसेस हुई कंप्लीट। अभी y में जाओ, y का सबसे पहले क्या करना है, टोटल, क्यों, क्योंकि किसी कॉलम का टोटल किए बिना रखना नहीं है। ठीक है, 65 70, टोटल इज 504, सिग्मा y इज 504। क्या करना है, फिर से फोर्थ स्टैंडर्ड, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, इट इज 504 डिवाइडेड बाय 7, सो द आंसर वुड बी 72। ठीक है, x बार मिल गया, y बार मिल गया। अब सबसे पहले क्या है, अपने पास x है, x बार है, y है और y बार है। x और x बार का क्या करना है, सबसे पहले x माइनस x बार। ठीक है, x माइनस x बार would be our step number 1। ये कॉलम किए बिना भी आंसर हमेशा इस कॉलम का टोटल क्या आएगा, अभी 0। ठीक है, पर करना पड़ेगा। 25 माइनस 33 would be -8। ठीक है, 38 माइनस 33 would be +5, 30 माइनस 33 would be -3, 28 माइनस 33 would be -5, then 34 माइनस 33 would be +1, 40 माइनस 33 would be 7 and 36 minus 33 would be +3। ठीक है, ये सारे डेविएशन लिख दिए फ्रेंड्स। इसका टोटल क्या आना चाहिए, 0। लेकिन लिख मत देना 0, काउंट करना, इट इज क्वाइट एसेंशियल, क्योंकि कई बच्चे मैथ्स में प्लस माइनस में मिस्टेक्स करते हैं, देन दिस इज करेक्शन डिमांडेड फॉर देम, ये करना है। -8 + 5 would be -3, -3 -3 -6, -6 -5 -11, -11 + 1 -10, -10 + 7 -3 and -3 + 3 is 0। समझ में आया, ये 0 है तो ये सारी कैलकुलेशन मेरी सही है। 0 नहीं है तो अपने आप पे कितना भी विश्वास हो, फिर से कैलकुलेट करो, योर आंसर इज 100% रॉन्ग इफ इट इज नॉट 0। यू कैन यूज कैलकुलेटर हियर, होशियारी मत मारना, कैलकुलेटर करके काम करना। ठीक है, x बार यूज हो गए, अभी कौन बचे, y बार, तो क्या करने का, y माइनस y बार। और फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है, 0, तो ये अपने लिए कुछ काम का नहीं है, तो यहां मार देते हैं कट। अभी y माइनस y बार कितना है, 72, 65 माइनस 72 वुड बी -7, 75 माइनस 72 +3, 68 माइनस 72 -4, 70 माइनस 72 -2, 72 माइनस 72 would be 0, 79 minus 72 would be +7 and 75 minus 72 would be 3। आंसर फिर से क्या आना चाहिए, 0, -7 + 3 -4, -4 -4 -8, -8 -2 -10, -10 + 0 -10, -10 + 7 -3 and -3 + 3 would be 0। मतलब ये भी सही है, पर फ्रेंड अगेन इसका आंसर भी क्या है, 0, तो ये भी कुछ काम का नहीं है। अभी ये दो टेबल्स अपने पास है, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या कर देने का, देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ना कैसे है, x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार, स्पेस निकाल दो इन दोनों के बीच में से। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल -8 इनटू -7 वुड बी +56, माइनस माइनस वुड बी प्लस, कैलकुलेटर का यूज करना, खुद कैलकुलेटर आंसर बता दे। 5 इनटू 3 वुड बी 15, -3 इनटू -4 12, -5 into -2 10, 1 into 0 0, 7 into 7 49 and 3 into 3 would be 9। सारे टोटल्स हो गए फ्रेंड्स। यू कैन यूज द m plus mrc फंक्शन फॉर दिस। ये छोटी कैलकुलेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अदरवाइज आई वुड आल्सो यूज द कैलकुलेटर। ठीक है, 56 plus 15 plus 12 plus 10 plus 49 plus 9, द आंसर इज 151। ठीक है,
ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये क्या हो गया अपना 1, ठीक है। अभी ये काम का नहीं है लेकिन चाहिए, तो इसका क्या कर देने का, स्क्वायर। सो दिस वुड बी x minus x bar the whole square. Minus 8 का स्क्वायर 64, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर would be 9, 5 स्क्वायर again 25, 1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49 and 3 स्क्वायर would be 9. हो गया सब कुछ, इसका सम कर देते हैं। It is 182, ठीक है। ये हो गया अपने लिए दूसरी चीज। फिर y माइनस y बार कुछ काम का नहीं है तो उसका भी क्या कर देंगे फ्रेंड्स, स्क्वायर। y माइनस y बार द होल स्क्वायर, ठीक है। 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, 7 स्क्वायर 49 एंड 3 स्क्वायर वुड बी 9, ठीक है। सो इट इज 136, ठीक है। तीनों चीज आ गई। अभी क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो क्या होता है r। जिनको फॉर्मूला याद है, समझ में आ गई, वो लिखो फॉर्मूला। जिनको समझ में नहीं आई, दो तीन क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें रिलैक्सेशन दे रहा हूं कि यू कैन गो दिस वे। ये क्या हो गया 3, क्या लिखना है 1/√2 into √3, लिख देना आंख बंद करके, यही आंसर आएगा। अभी फॉर्मूला टेक्स्ट बुक वालों को चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला तो चेक करेंगे लिखी आती है कि नहीं आती है। 1 में देखो क्या लिखा है नीचे, x minus x bar into y minus y bar, लिख दो, ठीक है। 2 में क्या लिखा है, x minus x bar the whole square, तो 2 में लिख दो सिग्मा x minus x bar the whole square। 3 में क्या लिखा है, सिग्मा y minus y bar the whole square, लिख दो, ये हो गई फॉर्मूला। अब ये तीनों में सिर्फ वैल्यू प्लेस कर दो, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज डन। ये क्या है, x minus x bar into y minus y bar, इट इज 151, ठीक है। Then sigma x minus x bar the whole square is 182, and finally sigma y minus y bar the whole square is 136, ठीक है। रूट, ठीक है। क्या करना है अभी, 151 को ऊपर लिख दो, फिर क्या करो 182 into 136 करो, योर आंसर इज 24752, ठीक है। इसको नीचे लिख दो और इसका क्या करना है अपने को, रूट, ठीक है। 151 डिवाइडेड बाय 24752 का रूट इक्वल टू करके फिर रूट करो, सो आंसर इज 157.3276, सो इट इज 157.33, ठीक है। नाउ 151 divided by 157.33, so my answer is 0.9597। फ्रेंड्स पॉइंट के पीछे दो नंबर रखने हैं, द थर्ड नंबर इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 यू नीड टू ऐड 1 टू द सेकंड नंबर। ये रूल याद रखना, आंसर इसी तरह से लेना है। सो द आंसर वुड बी 0.96, and if no sign is there on the prefix part then it would be deemed as plus 0.96। समझ में आया, दिस इज इलस्ट्रेशन 5, पूरा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, इंटरप्रिटेशन। प्लस 0.96 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फ्रेंड्स प्लस का मतलब पॉजिटिव और 0.96 मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं है, तो परफेक्ट हुआ कि इम्परफेक्ट, यस यू आर करेक्ट, इट इज इम्परफेक्ट। सो हियर देयर इज इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन रीडिंग आवर्स इन एग्जाम एंड मार्क्स, ठीक है। लेकिन 0.96 का मतलब क्या हुआ, 96% एक्यूरेसी, सो इट डिनोट्स अ हाई डिग्री ऑफ correlation between the two variables। interpretation में ये लिखना है, imperfect positive but it denotes a high degree of correlation between the two variables। This was illustration number 5। I hope you are understanding what is done। In the first part we discussed what is the interpretation or meaning of correlation coefficient R, then we discussed how to derive the formulas। In the third part we discussed that for the students who are not understanding how to derive the formula, how to find the answer, and in the fourth we discussed all that we did in 1, 2 and 3। I hope you are clear with all that is done। If you like this video, don't forget to press the like button, share and subscribe to our channel। Thank you very much friends, have a good day।